Shalom and welcome to CFI India. We are excited to have you here. This message is being shared by Pastor Nikki Chatra and the topic is mentioned on the screen below. Please watch till the end and may Adonai bless you all. Also to pray for our ministry. Praise the Lord. Thank you. Now something for the mothers, अब सब माँ के लिए एक okay, special and for future mothers. और फ्यूचर मदर्स I'll talk to you for a few minutes about one mother who is very rarely mentioned. मैं थोड़े टाइम के लिए अभी मैं एक स्पेशल माँ के लिए इस माँ के बारे में बात करूंगा जो From बाइबल में Exodus लिखा है। chapter 4, निर्गमन निर्गमन चौथे अध्याय से चौथे अध्याय में you see the wife of Moshe called Zipporah. हम लोग देखेंगे जो मोशे की जो पत्नी थी जिपोरा करके She was the mother of two sons, वो दो बच्चे की माँ थी। Gershom and Eliezer. गर्शोम और एलिएजर करके दो बच्चे थे उसके। And we see something very interesting happening और हम एक बहुत in Exodus chapter 4. हम देखते हैं कि क्या होता है निर्गमन के चौथे The अध्याय। Bible tells us that a time came when God wanted to kill Moshe. और हम देखते हैं कि ऐसे भी समय आता है बाइबल में कि प्रभु परमेश्वर मोशे को मार देना चाहता था। Very interesting, right? The very man who got Israel out of Egypt, ये इतना इंटरेस्टिंग बात है कि जो परमेश्वर ने जो आदमी को इजिप्ट से बाहर बुलाया और उसके द्वारा इजराइल के लोग को बाहर God बुलाया, gave the laws, His laws and His systems through this man. प्रभु ने अपने आज्ञाएं को और अपने जो रहने का जिंदगी कैसे जीना है मोशे के द्वारा दिया And था। imagine had God killed him, what would have happened? और अब सोचिए कि अगर प्रभु परमेश्वर ने मोशे को ही मार दिया था तो God called him. क्या होता था? God told him, go to Pharaoh, go bring Israel out of Egypt. But while he's on his way, God meets him to kill him. और प्रभु परमेश्वर अब मोशे से कहते कि जाके फेरो से बात करो और मेरे लोगों को चढ़ाओ और बीच में परमेश्वर उसको मिलते उसको मारने के लिए। So now let's read this, okay, from Exodus 4 verse 24 to 26. तो हम Just देखते three हैं verses. निर्गमन 4:34 अध्याय से लेके चौथा अध्याय 24 हाँ, से 26 तक. 24 से लेके Something that makes us really scratch our heads. ये ऐसा चीज है हम लोग अपने सर को खुजा के हम लोग What सोचते is हैं happening here? इधर क्या हो रहा है। God wants to kill Moshe, बाप रे. ये मोशे को मारना चाहता है And who saves him from death? और उसको कौन Who बचाता है? saves him from death? His उसको wife. कौन बचाता है? His wife. उसकी How? पत्नी बचाती है। By circumcising her son. कैसे What अपने a बच्चों का strange thing that's happening अपने here. बच्चों का कत्नी करके। So the purpose is not to preach about circumcision, तो मेरा ये मतलब नहीं है कत्नी के बारे में but the purpose is to talk about the role that Zipporah plays here. पर हम इधर जिपोरा का जो इधर काम था जो उसका काम था इस And every परिस्थिति mother में needs वो to learn उसके from बारे में this. बात करेंगे Every mother needs to learn from और this. हर माँ को इससे सीखना चाहिए। Okay? So something that God was angry with Moshe about. तो प्रभु परमेश्वर मोशे से कोई बात को लेकर गुस्सा हुए And we थे need to understand death in the Bible. और हम लोग को ये भी जानना जरूरी है कि मौत क्या होता है Death बाइबल में। in the Bible is like God saying, okay, your time on earth is done. Come up. तो मौत का क्या मतलब है बाइबल में कि प्रभु परमेश्वर अभी ऐसा कह Come, रहे now हैं you कि rest. तुम्हारा इस Now go to धरती के sleep. ऊपर का समय खत्म हो गया अभी मेरे पास आ जाओ। Go to sleep. You will sleep till the resurrection. तुम सो जाओ अभी धरती के ऊपर और मेरे पास आ जाओ। Okay? Death doesn't always mean eternal separation. मौत का Okay. ये मतलब नहीं है कि हम लोग हमेशा के लिए हम लोग को It doesn't परमेश्वर mean that he से was हटाया गया dispatching है। Moshe to hell. It doesn't mean that. इसका ये मतलब नहीं है कि प्रभु परमेश्वर मोशे को अभी But he नरक was को trying बचा to है। say that, look, Moshe, maybe your time is done. You're of no value anymore. Go to sleep. ऐसा हो सकता है कि प्रभु परमेश्वर अब बोल रहे हैं कि मोशे तुम्हारा काम इधर हो गया है, अब तुम्हारा why? कोई भी काम नहीं है इधर, तुम सो Why? जाओ। A lot of Christians and Jewish commentators have studied this and have discussed it and arrived at certain conclusions. और बहुत क्रिस्ती और यहूदी के बाइबल के जो जिन्होंने पढ़ा हुआ है ये इस वर्स को उन्होंने बहुत सारे चीज बोले हुए हैं इसके बारे में। Okay, now the consensus most have arrived at is that somewhere Moshe failed in observing the covenant of circumcision for his younger son. तो ऐसा सबसे माना जाता है कि
कि मोशे ने क्या किया कि अपनी जिंदगी जीते वक्त उसने अपने खुद के बच्चों का कत्नी करना जो एक बच्चे का नहीं करवाया, एक बच्चे का कत्नी उसने नहीं किया, एक का करवाया और एक का नहीं करवाया, उसने एक का किया और because उसने he एक का was नहीं living किया, among non-Jewish people and he wanted to please them. क्योंकि वो ऐसे लोगों के He was with, बीच living में with the रह रहा था। Midianites. मिद्यानी लोगों के वो बीच में वो रह रहा था। उसका फादर इन लॉ, उसका ससुर भी मिद्यानी याजक था और उसने सोचा कि मैं सबको प्लीज कर दूं तो ठीक है, एक का खतनी करवाया, एक का नहीं करवाया। दिस इज अ कंसेंसस, वी डोंट नो, इट्स नॉट इन द बाइबल, बट perhaps this could be the historical background. ऐसा लिखा तो नहीं है बाइबल में कि ऐसा हुआ है करके, पर ऐसे लोग मानते हैं कि ऐसा हुआ था। Now God has called him to do some big work. अब प्रभु ने उसको एक बड़ा काम करने के लिए बुलाया है, And God is telling him, you cannot do my work unless you first set the right example. और प्रभु अब ऐसे कह रहे हैं कि तुम खुद बड़ा काम नहीं कर सकते अगर तुम सही रास्ता नहीं दिखा सकते But लोगों को। Moshe, in a kind of probably in a shortcut manner, decided, come on, let me just start off. पर मोशे ने शायद से ऐसे कहा, शॉर्टकट लेके मैं अभी चलो मैं काम And God stopped him. He said, no, this is not going to happen. पर If you're not going to obey me, you don't need to live anymore. तो पर प्रभु परमेश्वर ने क्या कहा, अगर तुम मेरे आज्ञा के हिसाब से नहीं रहोगे तो तुम्हारा इधर कुछ काम नहीं है, तुम सो जाओ। In that case, your time is done. Go to sleep. फिर तुम्हारा समय खत्म हो गया, तुम आ जाओ मेरे पास, I'll find someone else to do my job through. मैं किसी और को ढूंढ लूंगा मेरा काम करने के लिए। And that's something that we all need to consider. और ये चीज हम लोग को If we are सोचना है। not of worth to God any longer, अगर हमारी जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं है परमेश्वर को, what's the point of living? तो फिर जीने का मतलब ही क्या है? Zipporah realized. जिफोरा को ये बात समझ में आया, She realized that there's a big call upon my husband's life. उसको समझ में आ गया कि मेरे पति के जिंदगी में एक बहुत बड़ा बुलावट है, There's a big call upon my family. मेरे परिवार के ऊपर एक बहुत बड़ा बुलावट है, And I need to protect that. और ये इस चीज का And मुझे रक्षक करना है। she took tough action. और उसने एक बहुत बड़ा एक्शन लिया, एक She बहुत was बड़ा not in a काम किया। hospital. वो कोई हॉस्पिटल वगैरह में नहीं She थी, wouldn't have had anesthesia to use. उसके पास एनेस्थीसिया वगैरह नहीं था। She didn't think, well, is my son going to get hurt or not going to get hurt? उसने ये नहीं सोचा कि मेरे बच्चे को चोट लगेगा या But as a उसको दर्द mother, होगा। she looked at what needs to be done in that पर situation. उसने माँ के हिसाब से ये देखा कि मुझे ये परिस्थिति में क्या करना है। She looked at the future. उसने भविष्य में देखा, She looked at the covenant that God made with Abraham. उसने उस भविष्य को देखा और उसने उस पुराने कवेनेंट को And she said, ये देखा कि जो परमेश्वर ने even अब्राहम if के my साथ किया husband था। is not setting the right example, I will correct things in the house. अगर मेरा पति सही रास्ते पे नहीं चल रहा है तो मैं सही रास्ते पे चलूंगी और मैं अपने परिवार को सही I रास्ते will पे make the लाऊंगी। course correction. मैं पूरे रास्ते को Again, सही करूंगी। I'm not preaching about circumcision. I'm preaching about doing the right thing. मैं कत्नी के बारे में नहीं सिखा रहा हूँ, पर मैं सही काम करने के बारे में सिखा रहा हूँ। Zipporah said, I am going to do the right thing. तो जिफोरा ने क्या कहा कि मैं एक सही काम करूंगी, Whether the family likes it or not, I'm going to do the right thing. चाहे मेरे परिवार को पसंद आए या ना पसंद आए, मैं फिर भी सही काम Whether it करूंगी। hurts my son or not, I'm going to do the right thing. चाहे मेरे बच्चे को चोट लगे या ना लगे, मैं फिर भी सही काम करूंगी। Whether it hurts my husband or not, I'm going to do the right अगर thing. मेरे पति को अच्छा नहीं लगा ये काम तो भी मैं करूंगी, Because it was the right thing to do. क्योंकि वो सही चीज था करने And का। by her action, और ये काम करने की she वजह से preserved the life of Moshe. मोशे का जिंदगी बच गया And she made him come back into a life of covenant. और उसके वजह से मोशे अपने सही रास्ते पे और सही जीने के रास्ते पे वापस आ गया। And we need to thank her that the exodus happened because she preserved the man of God over there. तो हम लोग को जिफोरा के लिए धन्यवाद देना चाहिए कि उसने सही काम किया, नहीं तो उसके बिना हम लोग के पास निर्गमन का किताब भी नहीं होता था। We need to thank her that we got the laws of God through Moshe because she did the right thing that night. हम लोग को उसको धन्यवाद बोलना चाहिए क्योंकि उसके वजह से मोशे बच गया और हम लोग को परमेश्वर की आज्ञाएं मिले। She is one of the most blessed women of all time. वो सारे माओ के बीच में बहुत बड़ी आशीषित औरत है। Not because she did something kuchi kuchi good,
but because she did something tough and difficult. उस वजह से नहीं क्योंकि उसने कुछ ऐसा वैसा अच्छा काम किया, पर उसने सही काम किया जो परमेश्वर चाहते थे, और उसके वजह से हम And लोग को as result women, मिला। as mothers, you are called to recognize the covenant of God and protect the covenants of God in your homes, in your families. और माँ होने के नाते और औरत होने के नाते आप लोग का जिम्मेदारी है कि अपने परिवार को सही रास्ते पे लाओ। You need to do the right thing. आप लोग को अपने परिवार में सही काम करना If है। somewhere the family is going wrong, there is a way to bring back the course onto the right track. अगर कहीं पे भी आपका परिवार सही काम नहीं कर रहा है या फिर गलत रास्ते पे, तो आपका काम है और आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप सही रास्ते पे उनको वापस लाओ, So परमेश्वर के रास्ते traditionally पे on लाओ। Mother's Day, you're supposed to talk about some mother. This is the mother I chose. तो मदर्स डे पे हम लोग देखते कि लोग बाइबल के माँ के But I बारे tell में you, बात when you- करते हैं। when- मैंने इस माँ को When you go home, think about this mother. Study her about her. Think about the tough circumstances. आप जब- She was not a Jew. आप जब घर जाओगे तो इस माँ के बारे में पढ़िए और जांच कीजिए। वो यहूदी माँ नहीं She थी, was not a Jew. वो मिद्यानी थी। She had no background or no understanding of all of these things. उसके पास कोई भी बैकग्राउंड नहीं था, उसके पास कोई सोच विचार नहीं था यहूदी लोगों के बारे Yet, में और वो क्या करते हैं। maybe with 40 years of marriage through Moshe, she learnt about the God of Israel. 40 साल शादी होने के बाद उसने बहुत कुछ सीखा होगा परमेश्वर के बारे And now में। the student has become the teacher. और अब जो स्टूडेंट है, She is the student. Moshe was the teacher. student But now है- she's gone and she's telling her teacher, teacher, you're doing wrong. You're going to die. I need to preserve your life. और मोशे ने जो भी सिखाया अब सिफोरा को, सिफोरा अभी खुद अपने टीचर के पास जा रही है, शिक्षक के पास जा रही है और बोल रही है कि तुम गलत कर रहे हो, तुम मरने वाले हो। Wives must be submissive. That's what the Bible tells us. सबमिसिव मतलब उनके आज्ञा का, पति के आज्ञा का पालन करना जरूरी होता है, क्योंकि पति परिवार का हेड है, सर है। लेकिन यहाँ पे भी हम लोग एक सिद्धांत सीख रहे हैं कि जब पत्नी को पता चला कि कुछ हो रहा है गड़बड़, परमेश्वर कुछ एक्शन लेने वाले हैं, पत्नी ने सही चीज़ किया, माँ ने सही चीज़ किया। उसने नहीं देखा कि वो बच्चे को चोट लगने वाला है, पति का क्या रिएक्शन होगा, उसने किया जो सही है परमेश्वर के नज़र में। और हर पत्नी को, हर माँ को ये करना ज़रूरी है कि पहचाने कि परमेश्वर क्या चाहते हैं, पहचाने कि परमेश्वर के कलाम में क्या लिखा है, परमेश्वर का वाचा क्या है, और उसके अनुसार एक्शन लेना, ये इम्पॉर्टेंट है। एंड दैट्स द मैसेज दैट एवरी मदर नीड्स टू गो होम विद दिस मॉर्निंग, to do the right thing in the sight of God. यही सब माँ को ये लेके जाना है घर पे कि हम लोग को परमेश्वर ने जो सही रास्ता है, सही काम है, वो हम लोग को करना है और अपने परिवार को वही रास्ते पे लाना है। Really, sometimes due to stress and with the various pressures of life, husbands are not able to sometimes realize or understand. Children are not able to understand. But the role of the mother here is to preserve the home, preserve the family, and preserve the laws of God within your family. कभी कभी स्ट्रेस या काम या ज़्यादा काम या फिर कोई भी कारण के वजह से कभी कभी पति को नहीं समझ में आता है कोई चीज़ें, या फिर वो क्या बोलते हैं उनको नहीं समझ में आता है, वो क्या करते नहीं समझ में आता है। पर जो पत्नी है, जो माँ है घर की, उनको ये सोचना है और ये अपने ज़िंदगी में रखना है कि प्रभु का काम हमेशा सही मेरा परिवार करे, मेरी जो पति है वो परमेश्वर का काम करे, और हमारे परिवार का नियम यही होना चाहिए कि परमेश्वर का रास्ता हम पे चलना है, हम लोग को पवित्र बनना है। Amen. Shalom, and thank you for watching this video. If you were blessed, then please click on like and please do subscribe to our channel. And if you would like to watch a few more of our teachings, then you may please click on these links over here, over here, over here, over here. And please do contact us. We would love to hear from you. You can contact us on the numbers that are mentioned on your screen. Thank you. Shalom. May God bless you.